Good morning, dear students. In this video, I'll make you understand about angles. An angle is made up to two rays starting from a common initial point. As like we have two rays and this is initial point and two rays starting from this point. First one is that and second one is this, and both rays are starting from a common point. This common point is point P. Ray PQ and ray P are starting from the point P. So ray PQ and ray PR together makes a diagram which is called angle. ओके सो अगर टू रेज हैं और उनका इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन है तो वो किसको फॉर्म करते हैं, किसी एंगल को फॉर्म करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर. वी हैव टू एंगल्स, एंगल ए ओ बी एंड एंगल आर पी क्यू and angle RPQ. Angle AOB is of 30 degree. Okay, and measure of angle AOB is 30 degree and measure of angle QPR, or we can say RPQ, that is 60 degree. Okay, so we have two angles. First one is of 30 degree and second one is of 60 degree. If we add the measure of angles, this is 30 plus 60 and we get 90. Sum of measure of angles is 90 degree. That's why these angles are called complementary angles. ठीक है, तो complementary angles की क्या condition है कि अगर sum of measure of angles आपके पास 90 degree आ जाए तो वो क्या होगा, complementary angles होगा. For example, if you have an angle that is of measure of 35 degree and second angle is of 65 degree. So if we can add these angles, then the measure is 35 plus 60, that is 100 degree. So ये 100 degree आ गया. That's why these angles are not complementary angles. Complementary angle की condition क्या है कि अगर sum of angles 90 degree आ जाए then the angles are called complementary angles. So अगर हम first वाला example देखें तो उसमें angle AOB है, that is complementary to the angle RPQ, and angle RPQ is complementary to the angle AOB. ओके, सो फर्स्ट वन अपन ने एंगल्स के बारे में स्टडी किया. सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन ये है कि अगर सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अनदर सेकंड एंड सेकंड एंगल इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट वन. बस कंडीशन यही है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए. Next, we come on the supplementary angles. So supplementary angle हम study करेंगे for with an example. We have two angles, angle YXZ, and measure of this angle is of 60 degree, and second one is angle PQR, and measure of angle PQR is of 120 degree. Okay, we have two angles, angle YXZ, and a measure of this angle is 60 degree, and second one is angle PQ
R, and measure of this angle is 120 degree. If we sum these angles, measure of these angles, so that is 180 degree. So अगर हम sum of measure of angles हमारे पास आ जाए कितना 180 degree, then both angles are called supplementary angles. So angle XYZ, angle YXZ is called supplementary to the angle PQR, and angle PQR is called supplementary to the angle YXZ. ओके, सो ये मेन चीज़ है कि सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ एंगल्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा. एज लाइक यू हैव टू एंगल्स एंड मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल इज 180 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री, and measure of second angle is 80 degree. If we add this measure of these angles, we get 180 degree. So measure of these angle is 180 degree, that's why these are called supplementary angles. तो supplementary angles की condition ये है कि उसमें measure of angle कितना आएगा आपके पास, measure of sum of angles कितना आएगा 180 डिग्री आएगा. ठीक है, सो ये था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में डिफरेंस कि कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स 90 डिग्री आएगा. ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स कितना आएगा 180 डिग्री आएगा. ठीक है, एंड इफ वी गेट द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री, देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन द एडजेसेंट एंगल्स. Now we study about adjacent angles. So we have two angles starting from a common initial point. This is a common initial point, and two angles starting from this initial point. And this initial point is point O. Okay, we have two angles, angle POQ, angle POQ and angle QOR. वी हैव टू एंगल्स, एंड इन टू एंगल्स में हमें एक क्या चीज़ दिख रहा है, एक तो कॉमन इनिशियल पॉइंट है. ठीक है, कॉमन इनिशियल पॉइंट. फर्स्ट कंडीशन इज दैट कॉमन इनिशियल पॉइंट, एंड सेकंड कंडीशन क्या है इसमें कि वन कॉमन रे मीन्स वन कॉमन साइड ऑफ एंगल, वन कॉमन साइड ऑफ एंगल. ठीक है, अब ये दो कंडीशन किन्हीं भी एंगल्स के बीच में आए कि वन कॉमन वर्टेक्स हो एंड वन कॉमन साइड हो. ठीक है, और जो नॉन कॉमन रे है वो इसके कॉमन रे के बोथ साइड होंगी, यानी कि नॉन कॉमन साइड्स आर बोथ साइड्स टू द कॉमन साइड. ठीक है, तो ये कंडीशन इन दोनों ये दोनों एंगल्स फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल में क्या कंडीशन है कि कॉमन इनिशियल टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे स्टार्टिंग फ्रॉम द vertex is common between two angles and one common side is common and non-common sides are both sides to the common side. Next we come to the linear angles. We have two angles, angle POQ, angle POQ and angle QOR. We have two angles, angle POQ and angle QOR. QOR. So in these two angles we have
a common vertex, that is vertex O. Okay, a common vertex and a common side okay, a common vertex and a common side. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि नॉन कॉमन साइड्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में होंगे. ठीक है, तो थर्ड कंडीशन ये है कि नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ऑपोजिट टू ईच अदर यानी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स में होंगे. ठीक है, तो लीनियर एंगल्स की कंडीशन ये है कि वन कॉमन वर्टेक्स होगा, वन कॉमन साइड होगी एंड जो नॉन कॉमन साइड्स हैं दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो अगर हम सम ऑफ दीज एंगल्स लें, सम ऑफ लीनियर एंगल्स लें, तो ये क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर. तो सम ऑफ द मेजर ऑफ लीनियर एंगल्स दैट इज़ ऑफ 180 डिग्री. यानी कि लीनियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री है. वी हैव टू लर्न दिस कंसेप्ट दैट सम ऑफ लीनियर एंगल इज़ 180 डिग्री. सेकेंड हम आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पर. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए कंडीशन ये है कि अगर दो आपके पास इफ टू लाइन्स intersect to each other on a point O, then these lines form four angles, angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. सो एंगल 1 एंड 3 अगर हम देखें, एंगल 1 एंड 2 देखें, एंगल 2 एंड 3 देखें, सॉरी 2 एंड 4 देखें और 4 एंड 3 देखें, तो ये सारे तो एंगल किसकी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, एक तो लीनियर एंगल्स की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, सेकंड वन इज़ एडजेसेंट एंगल की कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल में ही अगर हम ये देखें कि एडजेसेंट एंगल में ही अगर नॉन कॉमन जो साइड्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हो जाएं तो वो लीनियर एंगल बन जाता है. ठीक है, बट हम अब आने वाले हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में क्या होता है कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन अ कॉमन पॉइंट ओ, और इससे जो फॉर्म होने वाले 4 एंगल्स हैं, इनमें एंगल 1 इज़ कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज़ वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 3. एंड कंडीशन ये होती है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनकी मेजर हमेशा इक्वल होती है. एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू एंगल 3. मीन्स मेजर ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल 4 एंड मेजर ऑफ एंगल 2 इज़ इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल 3. दैट इज़ द मेन थिंग इन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स.